નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીનું 20મું જે ચેપ્ટર છે આલ્બમ એ ભણી રહ્યા છીએ. આગળના ભાગમાં આપણે વાત કરી હતી કે પંડિત શાદીરામ જે લાલા સદાનંદના પુરોહિત છે તેમણે લાલા પાસેથી 500 રૂપિયા કરજ પેટે લીધેલા, જે ચૂકવવા માટે ઘણી બધી કોશિશ કરે છે પણ તે ચૂકવી શકતા નથી. કોઈને કોઈ વિઘ્ન આવી જાય છે, કોઈને કોઈ મુશ્કેલી આવી જાય છે. માંડ માંડ પૈસા ભેગા કરેલા હોય ત્યાં કોઈને કોઈ વસ્તુ એવી બની જાય કે પૈસા એમાં જ ખર્ચાઈ જતા હોય છે. એક દિવસ જ્યારે લાલા સદાનંદ એમના ઘરે આવે છે ત્યારે એ પુસ્તિકાઓ જુએ છે, મેગેઝિન હોય છે, એની અંદર એ ફોટો જુએ છે. તો એને એક રસ્તો બતાવે છે કે આ ફોટાઓને તમે અલગ કરી નાખો, સારા સારા ફોટા હોય એનો આપણે આલ્બમ બનાવી છાપામાં જાહેરાત આપીએ, જેથી તમને 1000-2000 આસાનીથી મળી જશે. તો શાદીરામ છે એ આ વસ્તુ કરે છે અને બીજે દિવસે લાલા સદાનંદ એ આલ્બમની જાહેરાત આપી દે છે. ત્યાર પછી શાદીરામ દરરોજ ટપાલીની રાહ જુએ છે કે આજે ટપાલ આવે અને મારા નસીબ છે એ ઉઘડી જાય. પણ ઘણા દિવસો વીતવા છતાં પણ કોઈ ટપાલ આવતી નથી. તો હવે આપણે જોવાનું છે આગળ. એની પહેલા આપણે એક વાત કરી લઈએ. જે ગુજરાતીનું 19મું કાવ્ય છે એક બપોરે, તેના પ્રશ્ન જવાબ સાઇટ ઉપર મૂકી દીધા છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જોયા ન હોય તે જોઈ લેજો. આના પ્રશ્ન જવાબ પણ હું ટૂંક સમયમાં મૂકી દઈશ, જેમ બનતા જશે એમ હું મૂકતો જ જઈશ. બીજું એક કહેવાનું છે કે જે જૂના વિડીયોની અંદર મેં કીધેલું હતું કે કોઈને પીડીએફ કે કંઈ જોતું હોય તો મને મેસેજ કરજો, પણ મેં તમને આની પહેલાં પણ એક વિડીયોમાં કીધું હતું કે જે પીડીએફ મેં બનાવેલી હતી તે એક ફોનમાં હતી ને ફોન ખરાબ થઈ જવાને કારણે એ પીડીએફ હવે મારી પાસે નથી. એટલે જ મેં સાઇટ બનાવી હતી કે સાઇટની અંદર લખેલું હોય તો ફોન ખરાબ થઈ જાય કે કંઈ પણ થાય તો પણ એ પ્રશ્ન જવાબ રહી જાય. એટલે હવે મારી પાસે બીજી કોઈ નવી પીડીએફ છે નહીં. મારી પાસે જે હતું એ બધું મેં સાઇટ ઉપર લખીને મૂકી દીધું છે. તો હવે તમારે કંઈ પણ જરૂર હોય તો તમે સાઇટ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. એટલે ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓને એવું લાગતું હોય કે હું પીડીએફ મોકલતો નથી, પણ હવે ખરેખર પીડીએફ એવી કોઈ નથી, કારણ કે જે બનાવેલી હતી એ બધી ફોન સાથે જ વહી ગઈ છે. એટલે હવે નવી પીડીએફ કોઈ છે નહીં. એટલે સાઇટમાં જ લખી નાખું છું જેથી કાયમ એને સચવાઈ રહે. તો સાઇટની મુલાકાત લેતા રહેજો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો. હવે આપણે આગળ વધીએ. આખિર એક દિન શાદીરામ કે ભાગ્ય જાગે, મતલબ કે એક દિવસ એના નસીબ ખુલી ગયા. જે કેટલાય દિવસ ત્યાં રાહ જોઈ રહ્યા હતા ટપાલની, એના નસીબ છે એ ઉઘડતા નહોતા, ખુલતા નહોતા. આજે એ નસીબ ખુલી ગયા. કલકત્તે કે એક મારવાડી શેઠને પત્ર લીખા કે આલ્બમ ભેજ દો. કલકત્તાની અંદર કોઈ મારવાડી શેઠ હતો, એને પત્ર લખીને કીધું કે ભાઈ આલ્બમ મોકલી દો, એને ગમે છે, પસંદ છે. અગર પસંદ આ ગયા તો ખરીદ લિયા જાયેગા. કારણ કે ત્યારે તો પેલા આ મોબાઈલની એવી કોઈ સુવિધાઓ નહોતી કે આપણે એને ફોટા પાડીને મોકલી શકીએ કે એવું. ખાલી છાપામાં જાહેરાત આપી હતી કે સારા ફોટાઓ છે અને તમારે જોઈતું હોય તો બોલજો. તો એને એ પસંદ આવ્યું કે ભાઈ આલ્બમ ખરીદવો છે, પણ આલ્બમ પેલા મોકલો, પછી જોઈને નક્કી કરશે. જોઈને પસંદ આવી જશે તો એ ખરીદી લેશે. મૂલ્ય કી ચિંતા નહીં, પૈસાની ચિંતા ન કરતા કિંમત ગમે તેટલી હશે પણ પસંદ આવવો જરૂરી છે. ચીજ અચ્છી હોની ચાહીએ, એટલે કે આલ્બમ છે, ફોટા છે એ સારા હોવા જોઈએ. જો ફોટા સારા હશે તો ગમે તે કિંમત આપવા માટે તૈયાર છે. यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है. बराबर જોજો. આ પત્ર એના માટે કેવું, કરવટ એટલે આપણે સૂતા હોય ત્યારે પડખું બદલીએ, પડખું ચેન્જ કરીએ, એને કરવટ કહેવાય. તો આ પત્ર એના માટે એક બદલાવ રૂપી હતો, પરિવર્તન રૂપી હતો. કારણ કે જ્યારે માણસ સૂતો હોય અને પડખું ફરી
અને પછી જેમ ઊભો થાય એવી રીતે આજે એની કિસ્મત, એનું નસીબ આ ઉઘડી ગયું અને પડખું ફેરવીને એ પણ ઊભું થયું, मतलब કે નસીબ खुली ગયું। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। जो આ કોઈ માણસે પડખું બદલ્યું નહોતું, પણ નસીબે પડખું બદલ્યું, નસીબે બાજુ બદલી, સાઈડ બદલી। જે અત્યાર સુધી શાદીરામની તરફ ન હતી, કમનસીબ જે હતા, આજે એનું ભાગ્ય એકદમ ઉઘડી ગયું હતું। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम। पंडित शादीराम, कारण के आ बधु करवावाळा कोण हता? लाला सदानंद। એટલે પંડિત શાદીરામ સૌથી પહેલા લાલા સદાનંદ પાસે જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ એક પત્ર આજે આવ્યો, અત્યાર સુધી તો એક પણ પત્ર નહોતો આવ્યો, પણ આજે એક પત્ર આવ્યો છે, તો હું આ આલ્બમ છે એ મોકલી દઉં। 6 મહિને બીત ગયે, કારણ કે પહેલા તો ટપાલો લખવાની, મોકલવાની ને બધી વાર લાગતી હતી, એટલે અહીંથી પહેલા ટપાલ આવી, પછી આલ્બમ મોકલો, 6 મહિના વીતી ગયા। લાલા સદાનંદ બીમાર થયા, लाला छे ये हवे बीमार थई गया था। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, એટલે માળા ફેરવતા હતા, ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હતા કે ભાઈ લાલા સદાનંદ છે એ સાજા થઈ જાય, કારણ કે આવા સારા માણસ છે તો એના માટે બધા પ્રાર્થના કરતા હોય। वे न वैद्य थे न डॉक्टर और न ही हकीम, कारण के ये कोई डॉक्टर नहोता, कोई वैद नहोता, हकीम पण एक जातना वेद ज कहेवाय, तो ये कोई वेद के डॉक्टर के दवा दारू करवा वाला तो हता नहीं। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। बराबर जो भगवान ने एनी पासे कोई दवा दारू तो हतुं नहीं, मात्र एनी पासे एक ज दवा हती, माळा फेरववी, भगवाननुं नाम लेवुं, अने ए पण ए पूरी शक्ति लगावीने खरा हृदयथी અને પૂરા મનથી આ કાર્ય કરી રહ્યા હતા। કરવા ખાતર નહોતા કરતા, સાચા દિલથી, સાચા હૃદયથી એ કાર્ય કરતા હતા કે લાલા સદાનંદ જલ્દીથી સાજા થઈ જાય। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। इन्हें दवा करता पण વધુ ભરોસો, વધુ વિશ્વાસ આશીર્વાદ અને પ્રાર્થના ઉપર હતો કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો એ સફળ થાય, ભગવાનના આશીર્વાદ મળે तो चौक्कस साजा थई जसे। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है, दुआ मतलब प्रार्थना, दवा करता प्रार्थना वधारे सारी छे। प्रार्थनानी असर भले मोड़ी थाय पण एकदम व्यवस्थित थशे, एटले दवा करता प्रार्थना सारी छे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, हजू बीमार था, एटले चारपाई मतलब खाटला ऊपर सूता था। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। एनी बाजू में एनी एक वृद्ध माता हती, ए बैठेली हती अने ए सदानंदनुं एकदम निर्बळ दुर्बळ शरीर અને પીળું મોઢું, કારણ કે બીમાર હતા એટલે એનો જે ચહેરાનો રંગ છે એ ઉડી ગયો હતો, એટલે પીળા મોઢાને જોઈ જોઈને અંદર ને અંદર એ રડતી હતી। બાહ્ય નહોતી દેખાવા દેતી, પણ એનું અંતરાત્મા, એના મનમાં ઉદાસી હતી અને અંતરાત્મા એનો રડતો હતો। થોડી दूर पर एक कोने में, कोनो એટલે અહીંયા ખૂણો, એક ખૂણાની અંદર ઉનકી નવોઢા, નવોઢા એટલે નવપરિણીત, જે ના નવા નવા લગ્ન થયા હોય એવી સ્ત્રીને નવોઢા કહેવાય। તો લાલા સદાનંદના લગ્ન થોડા સમય પહેલા થયા હોય એટલે એની સ્ત્રી છે એ નવોઢા હતી। તો નવોઢા સ્ત્રી ઘૂંઘટ નિકાલે ખડી थी થોડીક દૂર એક ખૂણામાં એની પત્ની ખડી એટલે કે ઊભી હતી, और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो, અને જોઈ રહી હતી કોઈ એવું કામ તો નથી કે જે રહી ગયું હોય, કરવાનું બાકી રહી ગયું હોય। પાસ પડી ચોકી પર પંડિત શાદીરામ બેઠે, એની બાજુમાં એક ચોકી હતી, એના ઉપર પંડિત શાદીરામ બેઠા અને રોગી को ભગવત ગીતા સુના રહે थे, કારણ કે બીમાર વ્યક્તિને ભગવત ગીતા સંભળાવવાથી એને
शांति पण मळे। तो एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, बेभान थई गया। अचानक कोई पण कारणसर एकदम बेभान थई गया। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। सिरहाने मतलब के माथानी बाजुमां, एना माथा पासे बेसी गया। गीता वांचवानुं एने मूकी दीधुं। स्त्री गरम दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और मां घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी। कारण के बेभान थई गया એટલે એની પત્ની છે એ દૂધ લેવા માટે દોડી કે એનાથી શક્તિ પણ આવે, અને એના જે માતા હતા એને અવાજ દેવા માંડ્યા। કારણ કે જગાડો, ભલે બેભાન હતા પણ ઉઠાડવા માટે એને બોલાવવા માટે એ અવાજ દેવા માંડ્યા। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। ए समय ने लाग्યું કે આજે લાલા સદાનંદ, रोगी मतलब लाला सदानंद, एना माथानी नीचे कोई लागे एवी, चुभे एवी कोई वस्तु छे। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। इन्हें खबर पड़ी गई, कारण के जेवो एने माथा नीचे हाथ नाख्यो तो एनी नीचेथी जे कठण के सखत वस्तु हती ए पेलो आल्बम हतो के जे मारवाड़ी सेठे कलकत्ताना खरीदी लीधा हता एवुं जणाव्युं हतुं। पण खरेखर ए कलकत्ताना कोई मारवाड़ी सेठे खरीदेलो नहोतो, पण लाला सदानंदे ज खरीदेलो हतो। कारण के लाला सदानंद छे ए शादीरामने ऋणमांथी मुक्त करवा मागता हता। केम के शादीराम करज न चूकवी शकवाने कारणे दुखी रहता था, एटला माटे लाला सदानंद एने दुखी नहोता जोई शकता। एटले एने विचार्युं के आ रीते हूँ आइडिया आपीश तो एनुं ऋण छे ए उतरी जशे ने एने शांति थशे। पण खरेखर ए लाला सदानंदे ज आल्बम खरीदी लीधेलो हतो, जेने कारणे हवे पंडितजीने शुं थाय छे ए जोईए आपणे। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगना हो गया है। पहला तो एने विचार हतो, कारण के आल्बम वेचाई गयो, पैसा मळी गया, ई पैसामांथी एने लाला सदानंदने जे करज हतुं ए करज चूकवी दीधुं। એટલે એ ખુશ હતા કે મેં ભાઈ લાલા સદાનંદનું જે ઋણ હતું, કરજ હતું એ ચૂકવી દીધું છે। પણ આ જાણીને તો એને વધારે દુઃખ થયું કે મેં ઋણ ઉતાર્યું નથી, પણ ઉલટાનું ડબલ કરી દીધું। આ તો ઋણ ઉતરવાની જગ્યાએ ડબલ થઈ ગયું, કારણ કે એક તો એને પહેલા 500 રૂપિયા આપ્યા હતા, એ ઉપરાંત આલ્બમની કિંમત પણ આપી દીધી, એટલે ઋણ ઉતરવાની જગ્યાએ વધુ ચડી ગયું, ડબલ થઈ ગયું। આ તો उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। पहलो प्रश्न पण आज हतो अने अत्यारे पण आज प्रश्न छे। खूब दुखी थईने एने विचार्युं के भाई आ मारुं जे करज छे, ऋण छे, ए शुं क्यारे उतरशे ज नहीं। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। एने थोड़ी वार पछी ज्यारे ई भानमा आव्या तो एने जोयुं के भाई आल्बम तो शादीरामना हाथमां छे, एटले एनी पासेथी एने खेंची लीधो अने कीधुं के भाई सेठ जे कलकत्ताना हता, खोटुं बोले छे पण के कलकत्ताना जे सेठ हता एनी पासेथी मैं हवे आल्बम खरीदी लीधो छे, एटले आ आल्बम मारो छे। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। पंडित जी ने खबर पड़ी गई थी कि लाला सदानंद हजू खोटું જ बोले छे, कारण के कोई શેઠે આલ્બમ ખરીદેલો ન હતો, પોતે જ આલ્બમ ખરીદીને પોતાની પાસે રાખેલો હતો। પણ શાદીરામને દુઃખ ન થાય એટલા માટે એવું બોલ્યા કે એને કલકત્તાના વેપારી પાસેથી કે શેઠ પાસેથી આલ્બમ ખરીદ્યો છે। એ પંડિત શાદીરામને ખબર પડી ગઈ હતી, એ સમજી ગયા હતા કે આ ખોટું બોલે છે। પરંતુ હવે લાલા સદાનંદ એના માટે વધારે સજ્જન હતા, ઉપકારી એટલે કે જે બીજા ઉપર ભલું કરે, ઉપકાર કરતા હોય એવા, બીજાનું ભલું કરનાર હોય એવું માનવા માંડ્યા અને એને જે સમજતા હતા એના કરતાં પણ વધારે ઊંચા સમજવા માંડ્યા।
એટલે કે એકદમ સજ્જન, ઉપકારી, પરોપકારી समझवा मांडा। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, कारण के आवा सज्जन व्यक्ति ने, परोपकारी व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने केवी रीते केवू के तमे खोटू बोलो छो, पण ए कही शक्या नहीं। उनमें यह हिम्मत न थी, कारण के एवी हिम्मत तो न ज करी सके ने। आमे आवा साचा सज्जन माणस ने केवी रीते कही शकाय। वे चुपचाप माला फेरने लगे। वળી पाछा ए माळा फेरवा मांड्या, भगवान ने प्रार्थना करवा मांड्या। तो अहींया आपणो पाठ छे ए पूर्ण थाय छे। तमे जोई शको छो आनो बोध केटलो विशेष छे के कर्ज आपवा छतां पण एनी पासे पैसा तो न मागता, पण कर्ज उतारवा माटे पण पाछो एने मदद करी अने पोते ज आल्बम खरीदी लीधो, अने छतां पण एने जणाववा नथी देता के भाई मैं ज आल्बम खरीद्यो छे। केटला परोपकारी माणस कही शकाय। આજે દુનિયાની અંદર દરેક લોકો એકબીજાને આ રીતે મદદ કરે તો બધા માણસો સુખી થઈ શકે। હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ। ઋણ એટલે કર્જ અથવા ઉધાર, અદા કરના મતલબ ચુકાના, વિવશતા મતલબ મજબૂરી, લાચારી, પરવાહ મતલબ ચિંતા, હતભાગે, અભાગે, ભાગ્યહીન, કમનસીબ, આભા એટલે ચમક, જીવનદાયીની એટલે જીવન દેને વાલી, અહીંયા ઘાટો અક્ષર નથી પણ जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाली, हृदय हारिणी मतलब मन को लुभाने वाली, मन को हरने वाली, चिरंजीवी बहुत समय तक जीवित रहने वाला, पुत्र पण कही शकाय चिरंजीवी। चिरंजीव नो मतलब चीर एटले लांबू, लांबा समय सुधी जीवी एटले जीवनार। वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक जे देशी दवा करता होय तेवा। दुआ एटले प्रार्थना अथवा विनती अथवा आशीष। बेसुध एटले बेहोश। मुहावरे छे ठंडी आह भरना मतलब के दुखी होना, पेट काट कर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलाना, हृदय पर बरछिया चलाना मतलब के अत्याधिक चुभने वाली बात कहना। तो हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्न जवाब जोई लईए। पहलो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अहींया विकल्प एटले के ऑप्शन आपेला है। पहलो है पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे, तो इनो जवाब आवशे बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। जे पैसा बचावता हता ए कोई ने कोई रीते ए वपराई जता हता, बीमारी ने कारणे के बीजी कोई पण रीते। बीजो विकल्प छे शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनमें से चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। एनी अंदर जे चित्रों आपेला होय ए चित्रों जोईने छाना रही जाता था, एटला माटे वेचता न हता। त्रीजो विकल्प छे सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया। बराबर जो एने चित्रों शू कर्युं हतुं, तो अल्बम बनाया। सदानंदे कीधुं एटले पंडित शादीरामे एनो आल्बम बनाव्यो। पंडित शादीराम को अल्बम के कितने रुपये मिले। तो अहींया एनो कोई चोक्कस जवाब तो आपणने पाठमां नथी लखेलो, पण आपणे मानी शकीए कि 1000 रुपया मळेला होवा जोईए, कारण के 1000 मांथी एने 500 रुपयानुं ऋण चूकवेलुं होय तो 500 एनी पासे हता, એટલે 500 ने 500 फरीथी 1000 रुपया थई गया। એટલે એને કીધું હતું કે હવે એનું ઋણ છે એ ડબલ થઈ ગયું હતું, એટલે 1000 રૂપિયામાં આ આલ્બમ વેચાયેલો હોવો જોઈએ। તો આપણે 1000 એ ટીક કરશું એમાં। पांचमो है सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने अल्बम खरीद लिया था। जो कि अहींया पंडित शादीराम पण आवी शके अने सदानंद बंने आवी शके, कारण के बंने खुश हता। मारवाड़ी सेठे आल्बम खरीदी लीधेलो एटले बंने खुश हता। हवे आपणे नीचेना प्रश्नो जोईए। एक एक वाक्यमां उत्तर आपवानो छे। पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए। तो पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये
उसके लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। बीजो प्रश्न है, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे? पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उनके रोते हुए जो बच्चे हैं वो इन्हीं चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे, इसलिए नहीं बेचते थे। त्रीजो है, सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? लाला सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीरें अलग छांट लेने के लिए कहा। ત્યાર પછી છે, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? तो पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए हमेशा माला फेरा करते थे। उनकी औषधि माला फेरना थी और माला फेरने का काम बड़ी ही लगन से, आत्मा की शक्ति से और पूरे मन से वे कर रहे थे। ત્યાર પછી છે, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? तो एनु આપણે કારણ આગળ જોયું હતું કે એ ખોટું બોલતા હતા, પણ એને એટલા માટે એ કીધેલું હતું। આપણે જવાબ જોઈ લઈએ પહેલા। जब लाला सदानंद को होश आया तो उसने देखा कि एल्बम पंडित शादीराम के पास है, उसके हाथ में है। उन्होंने यह एल्बम उसके हाथ से छीन लिया और पंडित शादीराम को यह शंका न हो कि एल्बम किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। હવે એક બીજી વાત કે આપણે અહીંયા જે ભેજદુ એલ્બમ એના પછી 6 મહિને બીત ગયે, એની વચ્ચે એક ભાગ છે જે આપણે અહીંયા પાઠમાં આપેલો નથી, એટલે અમુક પ્રશ્નોના જવાબ તમને કદાચ આપણે કેમ કીધું કે આલ્બમ કેટલામાં વેચ્યો એ આપણે ખબર નહીં પડે કારણ કે પાઠમાં નથી, તો એ ભાગ છે એ હું તમને વાંચીને સંભળાવી દઉં છું જેથી તમને ઉપર છલી માહિતી મળી જાય કે ભેજદુ એલ્બમ એના પછી, કારણ કે જ્યારે શાદીરામ લાલા પાસે જાય છે, આ જ્યારે પત્ર મળે છે ત્યારે, તો એ શું કહે છે એની આપણે આગળ વાત કરીએ। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर्ड कराकर भेज दो। रजिस्टर्ड टपालनो एक प्रकार है, तो रजिस्टर्ड कराकर भेज दो, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। और मूल्य पंडित शादीरामे पूछो कीमत कितनी राखू? तो लाला एने कहे छे लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। जो 1000 रुपया में वेचेलू हतुं एने, એટલે 1000 रुपया लई शक्या हूं। कुछ दिन बाद उन्हें उत्तर में एक बीमा मिला। बीमा एटले पैसानो આપણે મોકલે મની ઓર્ડર એને કહી શકાય। तो बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था, कारण के एकदम पहली बार आयु तो एना हृदय में एकदम बीक थी। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 रुपये के 10 नोट थे, એટલે 1000 रुपया था। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से जग उठा। पंडित शादीराम खड़े थे, बैठ गए, सोचने लगे अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद ही उतने मिलते। जो हवे थोड़ी लालच थी गई कि कदाच 2000 लिखा हो तो 2000 ही मळत एम। इस विचार ने उनकी सारी प्रसन्नता किरकिरी कर दी, कारण के एने प्रसन्न तो थया 1000 रुपया मळवा, पण एने दुख पण थयुं कि 2000 लिखा हो तो हजू 1000 मळत, એટલે थोड़ी प्रसन्नता एनी ओછી थी गई। सायंकाल के समय वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये के नोट सामने रख कर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिला, એટલે કે કરજ थी छुटकारो मળી गयो। હવે आपने जो दया और सजनता दिखाई है उसे मैं मरण पर्यंत न भूलूंगा। आजीवन भूलीश नहीं, तमे सजनता जे मारी साथे करी छे ते।
लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? कारण के आश्चर्यचकित थईने पूछ्યું કે શેઠે શું આલ્બમ ખરીદી લીધો? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली, नहींतर तो कि मारी पास कई हतुं ज नहीं कि हूँ तमारुं ऋण चुकावी सकूं। मैं पहले भी कहना चाहता था, जो लाला सदानंद के छे कि मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि आपके हृदय को ठेस न पहुंचे। तमने हूँ पहला कहेवा मागतो तो पण हूँ अचकातो तो, कारण के तमने दुख न लागे एटला माटे। पर अब मुझे यह भय नहीं है, क्योंकि रुपये आपके हाथ में है। हवे तो मने के बीक नहीं, कारण के अत्यार सुधी मने बीक लागती थी कहेवानी। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने ही पास रखे। मैं आपका यजमान हूं, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। बराबर जोजो, यजमान छुई के तमे पंडित जी छो, पुरोहित छो, मारो धर्म है कि मारे तमारी सेवा करवी जोईए, माटे मारे तमारा 500 रुपया जोता नहीं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टे से पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। थोड़ा लोको छे तमारा जेवा। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। जो चिरंजीवी शब्द हतो पण पाठमां नहोतो। चिरंजीवी एटले लांबू आयुष्य भोगवी शकाय तेवुं। अब तो मैं ये रुपये न लूंगा, इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं। आटला वर्षो सुधी तो मांग्या नहीं, ये पण एक मोटो उपकार छे के हवे तो हूँ लईश ज नहीं। मुझे इससे ऋण होने दीजिए। ऋण एटले ऋण उतारवा दीजिए, एटले 500 तमारे लेवा ज पड़शे। ये 500 रुपये देकर मैं हृदय की शांति खरीद लूंगा। जो मने क्यांय चैन नहीं, हूँ बेचैन छूं, हूँ 500 रुपया आपीश तो मने शांति मळी जशे। निर्धन ब्राह्मण की यह उदारता और सच्चरित्रा देखकर सदानंद का मन मयूर नाचने लगा। जो सदानंद ने प्रसन्नता थई गई, कारण के एने निर्धन ब्राह्मणनी उदारता अने सच चरित्र देखीने एने आनंद थयो। उन्होंने नोट ले लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली ही बार हुआ। आने पहली बार आवो अनुभव थयो तो कि पैसा देवा वाळो पण दईने खुश थाय छे। पंडित जी के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। अहींया सुधी हतुं, त्यार पछी आवे छे 6 महीने बीत गए। एटले पाठ अधूरो छे, जेने कारणे आपणे थोड़ो प्रॉब्लेम प्रश्न जवाबमां रहेशे। कारण के मैं तमने आगळ पण एक कीधुं के अहींया जे प्रश्न छे के सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा, आपणे आज आवे कारण के आपणा पाठमां बीजुं कंई नथी, पण खरेखर ए आवशे के पंडित शादीराम की उदारता और सज्जनता के कारण। खरेखर साचो जवाब आ छे, पण आपणा पाठमां आ लीटी क्यांय छे नहीं, अधूरो पाठ छे। एनी जे आ सुदर्शनजी जे छे लेखक, एनी आखी वार्ता आ प्रकारनी हती। આપણે એમાંથી પણ થોડોક જ ભાગ લીધેલો છે। એટલે આપણે મારવાડી શેઠને આલ્બમ ખરીદ लिया था, એટલે આપણે એને પ્રસન્નતા થઈ એમ માની લઈએ છીએ, પણ સાચો જવાબ આ છે। હજી એક બે પ્રશ્નોમાં પણ આવું થશે જ। તો હવે આપણે ત્રીજો જોઈએ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए इसलिए बेचैन थे क्योंकि पंडित शादीराम को अपने यजमान लाला सदानंद से कर्ज लिए हुए कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काट कर पैसे बचाते थे। जो कोई न कोई ऐसा काम निकल आता था कि उसमें पैसे चले जाते थे। लाला सदानंद इतने भले आदमी थे कि उनसे कभी पैसों के लिए तकादा भी नहीं करते थे। इन सब से शादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। बीजो प्रश्न है, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो शादीराम के सामने बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज चुकाना था। एक दिन
लाला सदानंद शादीराम के घर पर आए तो उन्होंने वहां कुछ सुंदर पत्रिकाएं देखी जिसमें सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। उन्होंने शादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीर अलग करने के लिए बोला और इन तस्वीरों का एक एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया जाए तो कोई ना कोई उसे खरीद लेगा और इससे आपको पैसे मिलेंगे और मेरा ऋण भी खत्म हो जाएगा। और एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर ये एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या हल कर दी। बीजो प्रश्न है त्रीजो, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? तो शादीराम ने लाला सदानंद से कई वर्षों पहले कर्ज लिया था, पर वह कोई न कोई कारणसर उसको चुका नहीं पा रहे थे। एक बार लाला सदानंद पंडित जी के घर गए तो उन्होंने सुंदर चित्रों वाली पत्रिकाएं देखी, उससे एक एल्बम बनाने के लिए कहा और उसका विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने एल्बम खरीद लिया और उसके पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी। शादीराम को अब लाला सदानंद पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लग रहे थे। शादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था। शादीराम कितना भी प्रयास करने के बाद भी वह कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो लाला सदानंद ने उसे एक एल्बम बनाने के लिए कहा जिसमें अच्छी अच्छी सुंदर तस्वीरें थी और एल्बम बेचकर जो पैसे मिले उससे कर्ज उतार देना था। तो एल्बम बिक गया और पैसे मिले तो शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा है, ऐसा शादीराम को मालूम हो गया। इस तरह पहले लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा करना ही था, इसके बावजूद और एल्बम के लिए गए पैसे भी उसको अदा करना था, इसलिए कर्ज 2 गुना हो गया। હવે 4-5 વાક્યોમાં ઉત્તર આપણે લખવાનો છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? पंडित शादीराम एक गरीब पुरोहित थे। उन्होंने लाला सदानंद से कर्ज लिया था, वो कुछ भी करके उसको चुकाना था, पर वे चुका नहीं पा रहे थे। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहे थे और लाला सदानंद ने कभी उससे तकादा भी नहीं किया था। इसलिए शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते और नहीं मांगते तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़े ही कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में कर्ज न चुका पाने के कारण शांति नहीं थी। बीजो प्रश्न है, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा?
तो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को एल्बम बनाने के लिए जो पत्रिकाएं थी उसमें से अच्छी अच्छी तस्वीर अलग करने के लिए कहा था। उनको विश्वास था कि ये एल्बम 1000-2000 में बिक जाएगा। तो पंडित शादीराम ने 200 जितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें इकट्ठी कर ली और उनका एक एल्बम बना दिया। एल्बम बनाने के लिए तस्वीरों को वो देख रहे थे, तब उनको एक एक चित्र में 10-10 का नोट दिखाई दे रहा था। उनको आशा थी कि यह एल्बम अच्छी कीमत में बिक जाएगा, इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। ત્રીજો છે, लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से मना क्यों कर दिया। હવે આપણે આગળ વાત થઈ હતી કે આ પ્રશ્ન આપણી બુકમાં નથી, પણ મેં જે હમણાં તમને સંભળાવ્યું એ મુજબ કે લાલા સદાનંદે એને કીધું કે તમે અમારા પુરોહિત છો, મારે તમારી સેવા કરવી જોઈએ, મારે આ રૂપિયા જોતા નથી, આ એનો જવાબ છે। પણ એ આપણા પાઠમાં નથી, એ અલગથી મેં જે કીધું એ મુજબ છે। એટલે જવાબ આ રીતે એનો આવશે કે मैं आपका यजमान हूं, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। मैं ये पहले भी कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया क्योंकि आपके हृदय को ठेस न पहुंचे, इसलिए अब मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। आ एनो जवाब आवशे। चौथो छे, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आमां तमारे आखू लाला सदानंदनु चरित्र के व्यक्तित्व लखवानुं छे। बहु लांबो प्रश्न छे એટલે હું સાઇટ ઉપર લખીને મૂકી દઈશ, પણ ટૂંકમાં તમને સમજાવી દઉં કે એ સજ્જન માણસ હતા, એકદમ ઉદાર દિલવાળા હતા, ભલા માણસ હતા, સંવેદનશીલ હતા અને બીજાની મુશ્કેલીઓને એ સમજતા પણ હતા। એને શાદીરામને મદદ કરવા માટે જે વસ્તુ કરી, જેમ કે આલ્બમ બનાવવાનું કીધું, પૈસા પણ માગતા નહોતા, આલ્બમ બનાવીને પોતે જ ખરીદી લે છે અને છતાં પણ શાદીરામને ખબર ન પડે એટલા માટે ખોટું બોલે છે કે આ શેઠ પાસેથી મેં આલ્બમ છે એ મંગાવી લીધો છે। આ રીતનું આખું લખવાનું છે, જે તમને સાઇટ ઉપર મળી જશે। ત્યાર પછી જે પર્યાયવાચી શબ્દ છે એ બધું, વિરોધી શબ્દ, ભાવવાચક, મુહાવરાનો અર્થ, એ બધું હું તમને સાઇટ ઉપર લખીને મૂકી જ દઈશ। છતાંય આપણે એક એક વખત જોઈ લઈએ। પર્યાયવાચી શબ્દ હાથ એટલે હસ્ત કહી શકાય, કર કહી શકાય। ત્યાર પછી આંખ એટલે નેત્ર અથવા નયન અથવા ચક્ષુ। ત્યાર પછી ઋણ એટલે ઉધાર અથવા કર્જ। ત્યાર પછી અંધકાર એટલે અંધેરા। ત્યાર પછી પરમાત્મા એટલે ઈશ્વર, ભગવાન, પરમેશ્વર। વિલોમ એટલે કે વિરોધી શબ્દ આપણે દેવાના છે। તો એમાં પહેલો શબ્દ છે ઠંડી, તો ગરમી, પરવાહ તો લાપરવાહ, સજ્જન તો દુર્જન, જીવિત તો મૃત, નિરાશા તો આશા, સફल तो असफल, दया तो निर्दयता। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યો में से भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। आमांथी भाववाचक कयुं छे ए आपणे बताववानुं छे। लाला सदानंद पंडित जी की विवशता को जानते थे परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी, तो आमां आवशे भलमनसी। त्यार पछी बीजू वाक्य छे पंडित शादीराम को अब कोई आशा न थी, तो एमां आवशे आशा। त्यार पछीनुं वाक्य छे आपने जो दया और सजनता दिखाई है उससे मरते दम तक न भूलूंगा, तो एमां आवशे सजनता। चौथुं छे आप झूठ बोल रहे हैं, तो एमां आवशे झूठ। हवे मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपणे एना अर्थ तो आपी दीधा था। हवे वाक्य जे छे ए हूँ तमने
સાઇટ ઉપર મૂકી જ દઈશ. તો અહીંયા આપણો આ વિડીયો પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે ફરીથી જે ગણિતનું ચેપ્ટર બાકી છે એ પણ પૂરું કરશું. એટલે નવા વિડીયોમાં આપણે ગણિતના ચેપ્ટર સાથે મળશું.